بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج پولیٹیکل کمیٹی کی جو آج ہماری میٹنگ ہوئی ہے اس کی کچھ نکات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور ہمارا آئندہ عمل کیا ہوگا اس کے حوالے سے آپ سے بات کریں۔ سب سے پہلے تو پاکستان کی تاریخ میں کیا، میرے خیال میں دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا مثال نہیں ہوگا کہ کسی صوبے کی چیف ایگزیکٹو کو اغوا کیا جائے، ابڈکٹ کیا جائے، گرفتار کیا جائے۔ یہ تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ اس قسم کا ایک انتہائی قابل افسوس اور قابل مذمت حرکت ہوئی، اور وہ پھر کے پی اسمبلی کے پریمیسز میں، یعنی جو کے پی ہاؤس ہے وہ تو صوبے کی پریمیسز ہے، اس کے اندر جس طرح توڑ پھوڑ کی گئی، جس طرح انسلٹ کی گئی، اور جس طرح الامین جو کہ اس صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے اس کو اغوا کیا گیا، اس کو ابڈکٹ کیا گیا، اس پہ ہم سب نے پولیٹیکل کمیٹی نے بہت زیادہ شدید احتجاج کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ علی امین گنڈاپور کو فوری طور پر سامنے لایا جائے۔ اگر علی امین گنڈاپور کو سامنے نہیں دیا جاتا، اور اس طرح اس کو ابھی ہم نے سنا ہے کہ کوئی 149 آرٹیکل 149 کو سوچ رہے ہیں یا گولڈن راج کا سوچ رہے ہیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ہم بالکل کیٹیگریکلی کہتے ہیں یہ علی امین پر حملہ نہیں ہے، یہ پوری خیبر پختونخوا پہ حملہ ہے، یہ پوری خیبر پختونخوا کے ہر باشندے پہ حملہ ہے۔ ہمارے آپس میں پولیٹیکل اختلافات ہوں گے، لیکن میں امید رکھتا ہوں تمام سیاسی پولیٹیکل پارٹیز کی کہ اگر آج تاریخ انصاف کے ساتھ یہ ہوا ہے تو کل آپ کے ساتھ ہوگا۔ اور ویسی دنیا کیا سوچے گی کہ یہ کیسا ملک ہے جہاں کا چیف ایگزیکٹو ہی محفوظ نہیں ہے، چیف ایگزیکٹو کو بھی اس طرح جو ہے نا تذلیل کی جاتی ہے، اور پوری صوبے کے منتخب عوام کی تذلیل کی جاتی ہے، اور پوری صوبے کی عوام کو اتنا جو ہے نا ایک میسج دیا جاتا ہے، یہ ایک میسج ہے نا کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو واضح 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 کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو کر رہے ہیں اس کے خیال میں اگر ہم دب جائیں گے، پیچھے ہٹیں گے، میرے ساتھی میرے بھائی بہن سارے کھڑے ہیں، ہم حل پن کہتے ہیں اللہ کو حاضر ناظر کر کے آخری حد تک جائیں گے، آخری حد تک۔ نو لمٹس، نو لمٹس۔ ہم اپنی جدوجہد آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے کر رہے ہیں، یہ ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے کہ ہم احتجاج کریں۔ آپ اس قسم کی قانون سازی لے کے آئے، آپ امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں اور وہ قوم سے چھپا رہے ہیں۔ آپ کی یہ اگر آپ کے پاس حکومت کے پاس کوئی امینڈمنٹ ہے، کیونکہ 3 قسم کی مسودے جو ہے نا وہ گھوم پھر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب کے پاس ایک مسودہ ہے، مولانا صاحب کو دوسرا مسودہ دیا گیا، اور دیگر جو پارٹیاں اس کو اور قسم کا مسودہ۔ سب سے پہلے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اوریجنل امینڈمنٹ ہے کہ یہ پبلک کریں، ہمیں دکھائیں، ہمارے ساتھ بات کریں اس پہ کہ کیا چیز ہے۔ اگر آپ اس طرح خوف، زور، زبردستی اور زر کی بنیاد پہ، لالچ کی بنیاد پہ، ویسے بھی آپ فارم 47 کے پیداوار ہے، آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ حکومت کریں۔ آپ کو عوام نے مسترد کیا ہے، اور اس کے باوجود اگر آپ پھر یہ کرتے ہیں تو کیا خیال ہے کہ کوئی مانے گا اس کو؟ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہمارا احتجاج جاری رہے گا، اور اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ جھوٹا بیانیہ بیان کر کے، جھوٹا یعنی آپ کا ایک بیانیہ تو 8 فروری کو لوگوں نے مسترد کر دیا، ابھی ریفرینڈم کروا دیں، پتہ چل جائے گا کہ آپ کے بیانیے کی حیثیت ہے۔ آپ مسلسل جو ہے جھوٹ بول رہے ہیں، میڈیا جو ہے نا آپ کی کنٹرول میں ہے، سب کچھ جو ہے نا آپ کی کنٹرول میں ہے، اور جو ہے نا اور آپ کا کام نہیں ہے، آپ کوشش کر رہے ہیں کہ کیسے ہمارے
आवाज को दबाए, लेकिन ये अवाम एक एक अवाम की दिल की बात हम कर रहे हैं। अगर ये अमेंडमेंट जो हमें रिपोर्ट है ये पास हो गई तो इसका मतलब ये होगा कि असम्बली एक किस्म की तमाम जो शहरी हुकूक है, यानी आर्टिकल 8 और आर्टिकल 199, इसका बुनियादी मतलब ये है कि शहरियों की बुनियादी हुकूक वो मातल हो जाएंगे। जो शहरी आजाद, उसको जो है ना अपने चॉइस की पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने की इजाजत है, उसको जो है ना पब्लिक गैदरिंग की इजाजत है, उसको जो जो इजाजत है उसको स्क्वीज किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं मुतालबा फिर दोहराता हूँ कि आप जो भी ला रहे हैं वो पब्लिक करें और आप डिस्कस करें कि क्या चाहते हो। तीसरी बात यह है कि इस वक्त जो है हमारे इस वक्त जो ऑब्जेक्टिव्स है, हम सिर्फ पुरअमन तौर पर अपनी जद्दोजहद जा रहे हैं। यानी मैं पूरी कौम से भी पूछना चाहता हूँ, इन लोगों से भी पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ आप जो है ना अमेंडमेंट ला रहे हैं और इस अमेंडमेंट के पास आपके पास नंबर भी नहीं है, और नंबर के बाद फिर आप जो है अपोजिशन के MNA और सेनेटर्स को आप दबा रहे हैं, उसको जो है ना उसके ऊपर आप जबरदस्ती कर रहे हैं, अमेंडमेंट पास कर रहे हैं। इसको कौन मानेगा? इसलिए हमने आज ये भी फैसला किया है कि जब तक ये अमेंडमेंट का मसला खत्म नहीं होता, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, हम असेंबली की तमाम प्रोसीडिंग्स है, सेनेट में भी और नेशनल असेंबली में, तमाम प्रोसीडिंग से हम बाइकाट करेंगे। किसी प्रोसीडिंग में न नेशनल असेंबली में हम जाएंगे, न किसी स्टैंडिंग कमेटी में जाएंगे, न सेनेट में जाएंगे। हमारा तब तक बाइकाट होगा जब तक हमारे मुतालबात को माना नहीं जाता। हमारे मुतालबात क्या है? नंबर 1 ये है कि इस मुसविदों को पब्लिक किया जाए और इसकी वो तमाम कानूनी और जो रूल्स के मुताबिक प्रोसीजर उसको अडॉप्ट किया जाए। जोर और जबरदस्ती की बुनियाद पे लोगों की वफादारियां बदलना और उससे जो ना वोट लेना, इसको बंद किया जाए। जो हमारे वर्कर इस वक्त गिरफ्तार है और हमारे जो चेयरमैन इमरान खान गिरफ्तार है, उसके खिलाफ जो नाजायज मुकदमे बनाए गए मजीद, इसको खत्म किया जाए और हमारे जो MPs है उसको रिहा किया जाए। और इसके साथ साथ हमने यही भी फैसला किया है, जो फलस्तीन के हवाले से जमात इस्लामी ने जो मार्च का ऐलान किया है या मिलियन मार्च जो भी ऐलान किया है, हम इसकी हिमायत करते हैं। जो इसराइल की जुल्म और बर्बरियत है उसके खिलाफ हम पूरी पाकिस्तानी कौम जो है ना अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। और अगर हुकूमत इस हवाले से कोई इजलास बुलाती है तो हमारे लाख इख्तिलाफात सही, लेकिन हम इसको जो है ना ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अभी हमें प्लान नहीं है कि उन्होंने हमें इन्वाइट किया है कि नहीं किया है। लेकिन ये चूँकि हमारा एक इस्लामी फरीज़ा है, हम इस्लामी भाइयों के लिए, तो इस पर हम अपनी ज़ाती या ना ज़ाती दुश्मनी को रखते नहीं। और हमारे चेयरमैन ने भी कहा कि अगर इस किस्म की कोई कॉन्फ्रेंस होती है तो उसको हम ज्वाइन करेंगे। मैं आखिर में मौलाना फजल रहमान साहब को खराज तहसीन पेश करूँगा। इसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ जिस तरह वो डट के खड़ा है इस आईनी तरमीम के खिलाफ, और जो उसने किरदार अदा किया है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। जैसा ये बताइएगा कि चीफ एग्जीक्यूटिव लापता है, 24 घंटे हो गए हैं, दाखिला कह रहे हैं कि यहाँ किसी भी इदारे की हिरासत में नहीं है, वो खुद भाग गए हैं। आपके पास क्या इत्तलात है, कहाँ पर हैं? हमारे इत्तला के मुताबिक उसको KP हाउस से उठाया गया है, और जिस तरह KP हाउस के अंदर तोड़ फोड़ की गई है, हमने इंशाल्लाह ये फैसला किया है कि इसको हम करेंगे, इसको हम जो है ना रिपेयर नहीं करेंगे। ये हमारी तारीख का हिस्सा होगा, और जब भी स्कूल के बच्चों को विजिट करवाना होगा तो हम बताएंगे कि ये होता है, ये मुल्क की जमहूरी पाकिस्तान है, किस तरह भी चीज़ें होती है। और 24 घंटे के हमने अल्टीमेटम दिया है कि अगर 24 घंटे के अंदर अंदर तालिबीन को बाजियाब न किया गया, उसको प्रोड्यूस न किया गया, तो हम पूरे मुल्क में फिर एहतजाज निकाल देंगे। अच्छा स्पीकर साहब, काइंडली ये थ्योरी चल रही है या मुशावरे आला सतह पर हो रहे हैं कि KB में इमरजेंसी, तो फिर PTI का नया अमल क्या होगा? देखिए, हमारे पास कानूनी रास्ते भी है। इमरजेंसी क्या है? नंबर 149 की गुंजाइश ही नहीं बनती। पहले तो वो कहते हैं कि वो गिरफ्तार ही नहीं है। अगर वो गिरफ्तार नहीं है तो इसका मतलब है कि 149 वो कैसे लगा ले तो लगा ले जी। देखो, ये जंग जो हम कर रहे हैं,
ये तो हम सब सोच समझ के कर रहे हैं। देखो, नंबर 1 में एक बिल्कुल कैटेगरी, हम किसी तौर पर अनार्की नहीं चाहते, हम किसी तौर पर बदबदी नहीं चाहते, हम किसी तौर पर मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट नहीं चाहते। हम पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट हमारा हक है। कोई हमसे हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट जो है ना, अगर ये मुल्क में अनार्की, हम नहीं चाहते कि इस मुल्क में अनार्की हो, हम नहीं चाहते कि मुल्क में जो है ना बदअमनी हो, हम नहीं चाहते कि मुल्क में, हम चाहते हैं मुल्क में तरक्की हो, रोजगार के मौके पैदा हो और स्टेबिलिटी आए, थोड़ी सियासी स्टेबिलिटी आए। इसके लिए हुकूमती इकदाम उठाने होते हैं। कितने कारकुन गिरफ्तार हैं अभी तक? तकरीबन इस वक्त जो हमारे हिसाब किताब 1000 से ज्यादा डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन हजारों में। सत्येंद्र साहब, आपने कहा कि आप एनआरकी नहीं चाहते, लेकिन आपको तो रिसर्च तीसरा लगता है कि पूरे लाव लश्कर के साथ सूबाई हुकूमत मशीनरी लेके आप इस्लामाबाद आप जाते हैं, और आज भी इतला है कि रेस्क्यू सर्विस की 30 गाड़ियां और उसके सरकारी एहलकार इस्लामाबाद पुलिस की हिरासत में है, तो यह एनआरकी नहीं कोई क्या कहेंगे? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आईन हमें इजाजत देता है पीसफुल प्रोटेस्ट का? क्या आईन अगर हमें इजाजत देता है तो कौन फिर हमें रोकता है कि हम प्रोटेस्ट ना करें? अच्छा, मुझे ये भी बताएं, कभी हुआ है कि आप जलसे करें और उसमें टाइम रखें कि आपने 7 बजे तक खत्म करना है? कभी मरियम बीबी का इस तरह किया है किसी ने? कभी शहबाज शरीफ का और इन बाकियों का किसी ने किया है? रात 12 बजे जलसे करते हैं, अच्छा 6 बजे तक आपने जलसा करना है। पहले आप जो है ना उधर जलसा करो, नहीं उधर नहीं, तैयारी करो, वो उधर करना है, फिर सारे रास्ते बंद करो। भाईजान, ये जो कुछ हो रहा है ये याद रखे, अगर खुदा ना खास्ता तहरीक इंसाफ जो है ना, जो अपना मौक़िफ़ इस वक्त, ये इमरान खान का मसला नहीं, ये तहरीक इंसाफ का मसला नहीं, ये पूरी कौम का मसला है। अगर हम खड़े नहीं हुए, यकीन जाने ये मुल्क जो है ना, ये अनार्की की तरफ जाएगा। नहीं, इस मुल्क पे किसी की इंसानी हुकूक रहेगी नहीं। जो ह्यूमन राइट्स है वो आप समझो खत्म हो गए। फिर आप अभी भी माशाल्लाह जो आप मीडिया में चलाते हैं, आपको बताते हैं कि इतना इतना दिखाओ, इतना ना दिखाओ, फिर ये नहीं कहेगा, फिर आप पहले उनसे पूछेंगे कि जनाब ये दिखाएं कि ना दिखाएं। तो आप हमारे साथ खड़े हों ताकि इस जुल्म के खिलाफ और जालियत के खिलाफ जो है ना मुकाबला जीत सके। अभी असेंबली का इजलास जारी है, असेंबली के इजलास में बाकी कार्रवाई होगी। असेंबली इजलास हो रहा है तो असेंबली अपना रिस्पॉन्ड करेगा। थैंक यू।